Okay, see, in the last lecture, we have seen methods of preparation of alkyl halide. Means we have started with it, correct? And we have done one preparation from alcohol, and in that one preparation from alcohol A by using HX. HX means what? HCl, HBr, and H. So this first part we have done. So we have done the preparation of alkyl halide from alcohol by using HX means halogen acid. HX means halogen acid, that is hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid. So this we have done. Now today I'll start with the B part by using alcohol only, but by using alcohol and in addition to that by using phosphorus halide. Means we are preparing the alkyl halide from alcohol. But now to alcohol, what are we going to add? Phosphorus halide. Phosphorus halide. So I'll just take one example. First, suppose we say first one alcohol, the formula is OH. Alcohol. To alcohol, we can add PCl5. Now PCl5 is called as phosphorus pentachloride. Okay, so to alcohol, we are adding phosphorus pentachloride, which is on heating. Now see here, this OH is replaced by Cl. OH is replaced by Cl. So what we get here? RCl, and RCl is called as alkyl chloride, plus in addition to that this H and one more Cl will combine to give you HCl, plus P and O, and remaining Cl will give you what? POCl3. These are side product, correct? See, alcohol react with PCl5 and on heating gives you RCl. R is alkyl and Cl is chloride, plus HCl and POCl3. Now we can check the balancing of the equation. How many Cl we are having over here? 5 Cl. So here we are having 1, plus 1, 2, and plus 3, 5. Correct? Cl's are balanced. R alkyl group is 1, alkyl group is 1. P1, P1, O1, O1 equation is balanced. Correct? Now I'll take example. Suppose I'll take ethyl alcohol. What is the formula for ethyl alcohol? CH3, CH2, OH, ethyl alcohol. Now I think you all know that CH3, CH2 is called as ethyl and OH is called as alcohol, which on reacting with PCl5 and on heating, again OH will be replaced by Cl. So what do we get here? CH3, CH2Cl, and we know that this compound is called as ethyl chloride. I have done in the nomenclature ethyl chloride, or its IUPAC name is chloroethane. Chloroethane, correct? And plus all side product remains the same. Okay. If I take next example, CH3, CH2, CH2OH, 3 carbon atoms, so propyl alcohol, and all 3 carbon atoms are in the straight chain. So this is called as a N-propyl alcohol.
See, all these name I have given in the during the first preparation. So I'm not writing again and again, but you should know this. This is ethyl alcohol. This is N-propyl alcohol. Allowed to react with PCl5 on heating. Condition remains the same. What we get here, this OH will be replaced by Cl. So we'll get here CH3, CH2, CH2Cl. This is called as N-propyl chloride. N-propyl chloride is also called as 1-chloropropane because chlorine is here. 1-chloropropane and plus what we get here, HCl plus POCl3. All these name you will find in the nomenclature. I'll take one more. CH3, CH, OH, CH3. This is called as a secondary or isopropyl alcohol. Secondary or isopropyl alcohol allowed to react with PCl5 on heating. Yes, this OH will be replaced by Cl, and so what we get here, CH3, CH, Cl, CH3 plus HCl plus POCl3. Correct? So we got this. This is called as a isopropyl chloride or secondary propyl chloride, are common name, and 2-chloropropane because second carbon atom chlorine is a 2-chloropropane is a IUPAC. So we have done with PCl5. So we have allowed the alcohol to react with PCl5 and we have got alkyl chloride, HCl and POCl3. Correct? POCl3. Now we'll take the next. Alcohol we are allowed to react with PCl3. Alcohol we are allowing it to react with PCl3. PCl3 is called as phosphorus trichloride, which is on heating. Now see what product we'll get here again. OH will be replaced by Cl. So here we get RCl plus the side product will be H3PO3. H3PO3. RCl is called as alkyl chloride and H3PO3 is called as phosphorus acid. It is called as a phosphorus acid. Now balance the equation. Cl3, how many Cl? 3 Cl, and here we are having only 1 Cl, so I'll write 3. 3 Cl, 3 Cl. But now we got how many R? 3 R. So I'll write here 3 R. 3 R. But then we got 3 OH. 3 O and 3 H. So here see, here we are having 3 H and 3 O. Equation is balanced. So alcohol when react with phosphorus trichloride, we get alkyl chloride and phosphorus acid. Now I'll write the example. I'll take two. See, हमारे पास 8 alkyl groups है. कौन कौन से 8 alkyl group हमारे पास है? मिथाइल, इथाइल 2 हो गए, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 4 हो गए, और ब्यूटाइल के 4 है. कौन से ब्यूटाइल के 4? एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल. इनमें से कोई भी ग्रुप आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी ग्रुप, बट फॉर इजिएस्ट आई एम जस्ट टेकिंग, यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं,
Sometime I'll take only 1 and 2, sometime I'll take all 3, or sometime I take only 1. So I'll take any one first. Suppose CH3, CH2, OH is ethyl alcohol, allowed to react with PCl3, which is on heating. See RCl, तो यहाँ पे है, ये हमारा R है, so CH3, CH2 and OH will be replaced by Cl. So we got ethyl chloride is a common name, and chloroethane is the IUPAC name, plus H3PO3. You can balance the equation. See here 3 is there, so I'll write here 3. Then here 3 is here, so I'll write here 3, because all balancing are done as per the general reaction. या मतलब जब हम लोग reaction R के साथ लिखते हैं, reaction with R are called a general reaction. तो जिस तरह हमारा general reaction balance रहेगा, उसी तरह हमें ये reaction भी balance करना है. I'll take one more example. So I'll take CH3, CH, OH, CH3. It is called as a secondary propyl alcohol or isopropyl alcohol, correct? Will allow to react with PCl3, which is on heating. Everything remains the same, only OH will be replaced by Cl. So we get CH3, CHCl, CH3 plus H3PO. Now balance the same as this equation, 3. So 3, 3. So here also we'll write 3. So reactions with PCl3, correct? Now here we'll write reaction of alcohol with PBr3. PBr3. यहाँ पे PCl था, Cl की जगह भी यहाँ पे क्या यूज किया, Br, and this is called as phosphorus tribromide. Phosphorus tribromide on heating. अब ये क्या, यहाँ पे देखो PCl3 था इसलिए हमें RCl मिला, यहाँ पे अभी PBr3 है इसलिए क्या मिलेगा, RBr मिलेगा. तो here we get R, because this OH is replaced by R, so it is called as PBr, plus the side product remains the same, H3PO3. Balance the equation like this only, so we'll get 3. Then here we have 3, so here also we'll write 3. But now here one more condition is there. No, over the, यहाँ पे heating तो रहेगा ही रहेगा, but over the arrow we write phosphorus and Br2. Over the arrow we write what? Phosphorus and Br2. ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि here हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इधर क्या था, अल्कोहल में हम डायरेक्टली PCl3 ऐड कर दिया, अल्कोहल के अंदर डायरेक्टली PCl3 ऐड कर दिया और ये रिएक्शन हुआ. नाउ हियर PBr3 is not directly available, so PBr3 is prepared during the reaction, and when we prepare any reagent during the reaction, then it is called as in situ और in situ. मतलब हम लोग रिएक्शन के टाइम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो फॉस्फोरस and bromine will mix together, and phosphorus and bromine mix together to gives you what, PBr3. Phosphorus plus bromine will mix together and give PBr3. इसका बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बैलेंस कर देता हूँ. यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे Br3 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे here I'll multiply by 3. 3 2s are 6 Br. Here I'll multiply by 2. 3 2s are 6 Br, and how many P we are having? 2P. यहाँ पे. So here I can say PBr3 is prepared in situ. In situ का मतलब क्या होता है,
during reaction. मतलब हम लोग अल्कोहल के अंदर PbR3 नहीं ऐड करेंगे, अल्कोहल के साथ क्या ऐड करेंगे, फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन ऐड करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, PbR3, और फिर PbR3 रिएक्ट करेगा। करेक्ट, मतलब अल्कोहल में हम लोग डायरेक्टली PbR3 ऐड नहीं कर रहे, अल्कोहल के अंदर क्या ऐड करोगे, फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, and phosphorus and bromine will react to gives you PbR3, and then that PbR3 will react with the alcohol and we get this reaction. I'll take one example here. Suppose I'll take ethyl alcohol, CH3, CH2OH plus PbR3 by using phosphorus and bromine. समटाइम फॉस्फोरस के लिए यहाँ पे लोग एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, रेड फॉस्फोरस, तो हमें मालूम है हमारे पास दो टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, रेड फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस, तो हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं नॉर्मली, बट फॉस्फोरस ब्रोमीन लिखोगे तो भी चलेगा। एंड अगेन विल गेट हियर OH will be replaced by Br, so I'll get here CH3 CH2Br, which is called as ethyl bromide or bromoethane plus H3PO3. H3PO3, correct? Balance the equation. We'll have 3 balance, and here we are having 3, so I'll write here 3. Everything as it remains the same. Common name is ethyl bromide and IUPAC name is bromoethane, correct? We are done with PbR3. 1 minute, I just write down name of this compound here. POCl3 is called as POCl3 is called as phosphoryl chloride. POCl3 is called as phosphoryl chloride. Okay. So we have done with PCl5, done with PCl3, we have done with PbR3. Now next, yes, again I'll take next one here, that is, like again here, alcohol will react with PI3. PCl5, PCl3 हुआ, PbR3 हुआ, now is going for PI3. PI3 is called as phosphorus triiodide. Phosphorus triiodide allowed to react. और यहाँ पे भी this reagent is also prepared during the reaction. This reagent how? By using phosphorus and iodine. By using phosphorus and iodine. How? See, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, we take phosphorus, to phosphorus we add iodine, and they react together to form PI3. So phosphorus and iodine react to gives you what? PI3. बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बैलेंसिंग करोगे तो भी हमें खाली दिखाना है कि PI3 यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब अल्कोहल में हम लोग PI3 नहीं ऐड कर रहे, अल्कोहल के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, एंड दे विल रिएक्ट विथ ईच अदर, they will react with each other and they will form PI3. So here I can say here PI3 is prepared during reaction, and during reaction मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, it is prepared in C2 और in C2 भी बोल सकते हो, and then here we get R, OH will be replaced by I, OH will be replaced by I, and the rest of the product will remain the same, H3PO3. Balancing also here will have 3,
and here we'll have 3. Now we'll take one example. अगर यहाँ पे बैलेंसिंग करना है तो आयोडीन 2 आयोडीन 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 से. So 3 2 is 6i, 2 3 is 6i, 2p, and here also we'll have 2. But ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है. Correct? Now we'll take example of this one. Again I'll take ethyl alcohol CH3 CH2 OH. Ethyl alcohol allowed to react with Pi3. The condition is what? Phosphorus and iodine. And on heating, yes, OH will be replaced by I. So here I'll get CH3 CH2I, which is called as ethyl iodide, common name, and iodoethane is IUPAC name, and plus we get H3PO3. Balance the equation. 3 3 हमारा जनरल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो उससे हम लोग खाली कॉपी कर रहे हैं. करेक्ट. तो ये हमारा प्रिपरेशन हुआ फ्रॉम अल्कोहल. ये हमारा प्रिपरेशन कौन सा हुआ? फ्रॉम अल्कोहल, एंड बाय यूजिंग व्हाट? PCl5, PCl3, PBr3 and Pi3. I'll go for next. C, by using thionyl और thionyl भी बोल सकते, thionyl chloride, and its formula is SOCl. By using thionyl chloride or thionyl chloride and SOCl2. Correct. Now here again I'll take the general reaction. Alcohol, ROH is called as alcohol. To alcohol we are going to add here what? SOCl2. SOCl2 is called as thionyl chloride, which is on heating. OH is replaced by Cl. So we get RCl plus, and here S is there. This S and O and O. So here what we get? SO2 plus, यहाँ से सल्फर लिया, यहाँ से एक O लिया और यहाँ से एक O लिया, तो क्या बना? SO2 बना, और यहाँ पे H बाकी था और यहाँ पे Cl बाकी था, तो क्या बना? HCl बना. SO2 गैस है तो हवा में चला जाएगा, HCl भी गैस है तो भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमें अल्काइल क्लोराइड मिलेगा. तो वी हैव कन्वर्टेड अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड. अल्कोहल को हम लोग अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस. करेक्ट. नाउ बैलेंस द इक्वेशन. R1 O1 and 1 2 O2, H1 S1 Cl2, 1 Cl here and 1 Cl. Equation is balanced. Okay, now we take example with SOCl2. Again I'll take first alcohol, ethyl alcohol, CH3 CH2OH plus SOCl2 on heating. यहाँ से OH रिमूव कर दो और it can be replaced by Cl. So what we get here? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl plus SO2 plus HCl. Ethyl alcohol react with SOCl2 gives you ethyl chloride
plus SO2 and HCl. Correct? Ethyl chloride, common name. Chloroethane is a IUPAC name. या तो हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो 8 अल्काइल ग्रुप है उसमें से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो. तो हमें 8 अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन लिखने के लिए आना ही चाहिए. CH3 CH2OH, कॉमन नेम इज N प्रोपाइल अल्कोहल. बिकॉज हमें मालूम है इतना सारा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, N प्रोपाइल. N प्रोपाइल अल्कोहल allowed to react with SOCl2 and on heating chloride, N propyl chloride, SO2 and HCl. Common name is N propyl chloride. IUPAC name is 1-chloropropane. Nomenclature तुम्हें कंपल्सरी आना चाहिए, क्योंकि अगर nomenclature आएगा तो ही रिएक्शन लिख सकते हो. करेक्ट. एंड यहाँ पे एक रिमार्क है, the halide obtained by this method means by using एसोसिएट. देखो हमें यहाँ पे हैलाइड मिल रहा है, अल्काइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड एन प्रोपाइल. यहाँ हमें क्लोराइड मिल रहा है, मतलब द हैलाइड ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज exist in its more purest form. प्योरेस्ट मतलब यहाँ पे हमें जो हैलाइड जो मिलेगा वो हैलाइड हमेशा क्या रहेगा, मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा. मतलब बाकी के मेथड से भी हम लोगों ने क्लोराइड वगैरह बना दिया था, लेकिन वहाँ पे जो क्लोराइड मिलेगा और यहाँ पे जो क्लोराइड मिलेगा, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हमें हैलाइड मिलेगा इट इज गोइंग टू बी इन द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे SO2 मिल रहा है साइड प्रोडक्ट, लेकिन वो गैस है तो वो निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा. HCl भी मिलेगा, वो भी गैस है और वो भी निकल जाएगा. तो व्हाट विल रिमेन इन द कंटेनर, ओनली RCl. मतलब हमारा अल्काइल क्लोराइड कंटेनर में बचेगा. ये दोनों गैस के फॉर्म में, मतलब SO2 भी also will goes away in the form of gas, HCl also goes off in the form of gas, so this will only remain in the container. And that's why we say the halide obtained by this method exists in the more or most purest form. Okay, most purest form. तो ये हुआ हमारा. सो वी हैव डन विद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड by using अल्कोहल एंड फॉस्फोरस हैलाइड. फॉस्फोरस हैलाइड में क्या यूज किया था हम लोगों ने, PCl5 यूज कर दिया, बाद में PCl3 यूज कर दिया, बाद में PbR3 यूज कर दिया, उसके बाद PI3 यूज किया, और यहाँ पे SOCl2 which is also called as what, thionyl chloride, ये यूज कर दिया. करेक्ट. तो ये हमारा मतलब अल्कोहल से प्रिपरेशन हो गया. नाउ आई एम गोइंग फॉर सेकेंड प्रिपरेशन. सेकेंड preparation of alkyl halide from hydrocarbon. Preparation of alkyl halide from hydrocarbon. पहला मेथड हमारा था preparation of alkyl halide from alcohol. Now we are doing it from hydrocarbon. Preparation of alkyl halide from hydrocarbon. Correct. So I'll start one by one. And the type of the hydrocarbon means what? We know that alkane, alkene, alkyne, they all are called as hydrocarbon. But here we are showing the preparation from, here specially we are showing preparation from alkene. Alkene means what? The one which contain carbon-carbon double bond. So here we are going to prepare alkyl halide
from hydrocarbon. Which hydrocarbon? Alkene. And alkene means what? The one which contain carbon carbon double bond. The one which contain carbon carbon double bond. Okay, I'll start one by one. Now here in this I'll have two alkenes. हमारे पास दो alkenes है. Alkenes दो type के alkenes है. The first type of the alkene are called as symmetrical alkene, and second type of the alkene are called as unsymmetrical alkene. See, we are preparing alkyl halide from hydrocarbon. Which hydrocarbon we are using? Alkene. And alkene are of two type. एक symmetrical alkene है और एक unsymmetrical alkene. ये symmetrical का मतलब क्या होता है? देखो पहले मीनिंग देखेंगे हम लोग. CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH2. डबल बॉन्ड के राइट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH2. तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर सिमिलर ग्रुप्स आ रहे हैं देन दे आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्केन. आई जस्ट राइट डाउन द नेम. द नेम ऑफ दिस अल्केन इज इथीन. लेकिन सिमेट्रिकल. करेक्ट. और एक अगर मुझे एग्जांपल है सिमेट्रिकल का तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी सिमेट्रिकल ही है. सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3CH. डबल बॉन्ड के राइट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3CH. तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सिमिलर ग्रुप्स है and therefore this alkene is also called as a symmetrical alkene. I'll write down its name. Its name is but2ene. But क्यों? Because number of carbon atom 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम तो ब्यूट है. करेक्ट. 1 2 डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में तो 2 है. डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में तो 2 है. करेक्ट. और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग एंड क्या करते हैं? ENE. इस सिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल देखो. वेल राइट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल क्यों है? देखो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3CH. डबल बॉन्ड के राइट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH2. तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में CH3CH है, डबल बॉन्ड के राइट साइड में CH2 है. तो दोनों ग्रुप सेम नहीं है. द डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड वाला ग्रुप और डबल बॉन्ड के राइट साइड दोनों ग्रुप सेम नहीं है. इसीलिए वी कॉल इट एज अनसिमेट्रिकल अल्केन. करेक्ट. एंड इट्स नेम इज प्रोप 1 ENE. लेकिन 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. प्रोप क्यों प्रोपिन? देखो 1 2 3 3 कार्बन आइटम. and because we are having 3 carbon atom, प्रोप the 3 carbon atom. and यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1, lower number is 1. and for double bond we are writing ENE. so name will become what? Propene. correct. Propene. तो हमें जो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे अभी बनाना है वो अल्कीन से बनाना है. और अल्कीन हमारे पास दो टाइप के अल्कीन्स है. सिमेट्रिकल अल्कीन and unsymmetrical alkene. Symmetrical and unsymmetrical. Correct. So now we'll go for example of this. Okay, first I'll start with symmetrical.
symmetrical alkene. Symmetrical alkene. Now symmetrical alkene, I'll take example CH2, double bond CH2. Again, I'm writing its name is ethene. Allowed to react with HCl, कोई भी. Either you can take HX, HBr, HI. तो HBr लिया मैंने. Alkene symmetrical है. Left side we are having which group? CH2. Right side also we are having which group? CH2. तो यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्किन अगर रहेगा तो H कैन गो टू लेफ्ट साइड कार्बन आइटम एंड Br कैन गो टू राइट साइड कार्बन आइटम. तो देखो H अगर यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 एंड Br यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा? CH2Br. And see here, addition is done. Addition of this reagent is done across the carbon-carbon double bond. The double bond के left side में एक group जा रहा है, double bond के right side में दूसरा group या atom जा रहा है. तो addition is taking place across the carbon-carbon double bond. Correct? तो हमें ये CH3 CH2Br मिला. And this compound, of course, you all know the name of it, ethyl bromide. But suppose if some students say, can I do the addition the other way? Other way matlab, can I add H to this carbon atom and Br to this carbon atom? Yes, we can try. If we do it like this way, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा CH3, इधर मुझे मिलेगा CH2 and Br. See, this compound is exactly same as this. Here we are getting CH3 CH2 Br. और यहाँ पे भी देखो इसे रीड करो, CH3 CH2 सेम. मतलब अगर हमारा अल्केन सिमेट्रिकल रहेगा, then you can add the reagent the way you want, but your final product remains the same. मतलब H लेफ्ट साइड में जाने दो या राइट साइड में जाने दो, Br लेफ्ट साइड कार्बन पे जाने दो या राइट साइड कार्बन पे जाने दो, फाइनल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. प्रोडक्ट चेंज क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारा अल्केन सिमेट्रिकल है. करेक्ट. I'll take same example with CH2, double bond CH2 plus HCl. मतलब HBr की जगह HCl भी यूज कर सकते हो. Again same thing, H can go to left side carbon atom and Cl can go to right side carbon atom. यहाँ मतलब H लेफ्ट साइड कार्बन के पास चला जाएगा, Cl राइट साइड कार्बन के पास चला जाएगा एंड डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड. तो CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड. यहाँ पे ब्रोमाइड बना बिकॉज वी एडेड HBr. यहाँ पे क्लोराइड बना बिकॉज वी एडेड HCl. सिमिलरली ethene, we are adding HI, हाइड्रोजन आयोडाइड. या हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है. अगेन हियर H कहाँ पे भी लेके जाओ, कोई भी कार्बन पे लेके जाओ. H कैन गो टू लेफ्ट साइड कार्बन एटम, we get CH3 CH2I. It is called as a iodine. मतलब कैसे रहे मालूम है? एग्जाम में तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्रोमाइड बनाओ तो HBr ऐड करना पड़ेगा, क्लोराइड बनाओगे तो HCl ऐड करना पड़ेगा, आयोडाइड बनाओ तो HI ऐड करना पड़ेगा. इसलिए तुम्हें सारे तीनों मालूम होने चाहिए, HBr, HCl एंड HI. ओके. नेक्स्ट इस सिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में हुआ. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन. One more of symmetrical alkene. Suppose I have CH3 CH. ने इसका नाम लिखा था. The name of this compound is but 2-ene. But क्यों? Because there are total 4 carbon atoms, so it is but. Double bond is between second and third, so lower number is second. And for double bond, ANE is replaced to ENE. And to this, I will add the HBr. Again, देखो ये सिमेट्रिकल है. डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3CH.
डबल बॉन्ड के राइट साइड में भी कौन सा ग्रुप आ रहा है, CH3CH। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप आ रहे हैं, करेक्ट, तो सिमेट्रिकल है। तो अगर मैंने H को लेफ्ट साइड कार्बन पे लेके गया, देखो एडिशन कहाँ पे होगा, एडिशन विल ऑकर अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, करेक्ट। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में ही एडिशन होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एडिशन ऑकर्स अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। H will go to left side carbon atom, so Br will go to right side carbon atom of the double bond. So what will get over here, CH3 CH2 CH Br CH3, करेक्ट। इसका नाम हमें मालूम है, बट आई जस्ट राइट डाउन हियर, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी क्यों, because Br attached to the carbon atom and this carbon atom attached to how many more carbon atom, two, one on the right and one on its left, so secondary। और अगर मुझे IUPAC नेम लिखना रहेगा तो 2 ब्रोमो, सारे एग्जाम्पल हम लोग नोमेनक्लेचर में किए हुए हैं, करेक्ट, खाली तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। देखो 2 ब्रोमो क्यों, बिकॉज देखो यहाँ नंबरिंग मुझे राइट से ही करना पड़ेगा, अगर नंबर मैं राइट से करूंगा तो Br को सेकेंड नंबर आएगा, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, and how many carbon atom in the chain, 1 2 3 and 4, so 2 bromo butane। सपोज सम स्टूडेंट से कि अगर मैंने H यहाँ पे लेके गया और अगर मैंने Br यहाँ पे लेके गया तो व्हाट हैपन, नहीं तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। सेम प्रोडक्ट क्यों मिलेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल अल्केन। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर वन सेंटेंस, इन केस ऑफ symmetrical alkene, in case of symmetrical alkene, in case of symmetrical alkene, the reagent can be added the way the reagent can be added the way you want, but final products remains same। मतलब रिएजेंट का एडिशन कैसे भी करो, H लेफ्ट में जाने दो या H राइट में जाने दो, Br लेफ्ट साइड या राइट साइड में, बट फाइनल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। दिस इज इन केस ऑफ विच अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन। तो अभी सिमेट्रिकल अल्केन हो गया। एंड यहाँ पे वन मोर मुझे एक पॉइंट बोलना है, ओके, एंड anyway I'll just go for the next one। now we'll take the example of unsymmetrical alkene। unsymmetrical alkene, unsymmetrical। तो अभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर हमारे पास है, सबसे पहले अगर हमारा अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा देन फॉर एडिशन ऑफ रिएजेंट, तो मतलब जो हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे HBr है, जो हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं उसे हम लोग क्या बनेगा, रिएजेंट बोलना पड़ेगा। सो फॉर एडिशन ऑफ रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब अगर हम लोग रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर ऐड कर रहे हैं, देन वी हैव टू follow, we have to follow, yes, we have to follow Markovnikov's rule। we have to follow Markovnikov's rule। तो लास्ट ईयर हम लोगोने किया था एक मार्कोनिकॉफ रूल, वो सेम रूल है
कि अगर हम लोग रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्किन में अगर ऐड कर रहे हैं, then while addition we have to follow which rule? Markovnikov's rule. Okay, now what is this rule here? पहले रूल देखते हैं हम लोग क्या है कि when unsymmetrical reagent is added to when unsymmetrical reagent, मतलब हमारा जो reagent रहेगा वो भी कैसा रहेगा? Unsymmetrical रहेगा. When unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent goes to carbon atom. Negative part of the reagent goes to carbon atom, which carries less number of hydrogen, मतलब अगर हम लोगों ने देखो, आई रिपीट वंस अगेन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. अभी अनसिमेट्रिकल क्यों मालूम है? देखो यहाँ पे HBr है, तो अगर मैंने यहाँ इसको डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट में आ रहा है H, राइट में आ रहा है Br. तो HBr जो हमारा है, HBr या HI, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. तो अगर हम लोगों ने कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन में अगर ऐड कर दिया, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, हमारा जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, विल गोज टू द कार्बन आइटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. मतलब अगर हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन के अंदर ऐड कर दिया, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to the carbon atom which carries less number of hydrogen, Now we'll take example of this. Okay, I'll take first example. We are having here CH3 CH double bond CH2. This is propene. This is propene, and we know that the propene is unsymmetrical reagent. Propene is unsymmetrical. Propene unsymmetrical क्यों है? देखो यहाँ पे, बिकॉज डबल बॉन्ड के राइट साइड में आ रहा है CH2, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में आ रहा है CH3CH. सो प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. टू दिस आई एम एडिंग HBr. अब ये HBr जो है, HBr इज ऑल्सो unsymmetrical reagent. HBr लो, HCl लो, HI होने दो, कोई भी HCl, HBr, HI, ऑल आर अनसिमेट्रिकल. क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड वगैरह ब्रेक कर दिया, तो ऑन लेफ्ट साइड आई गेट H and right side I get Br. So two are different, and because the two are different, it is called as a unsymmetrical reagent. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? According to Markovnikov rule, unsymmetrical reagent is added, plus मतलब add करना, added to unsymmetrical alkene. So when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, तो क्या होगा? देखो अभी HBr में H के ऊपर चार्ज होता है प्लस
एंड Br के ऊपर चार्ज होता है माइनस, ना तुम्हें मालूम रहेगा अगर HCl लिया हम लोगों ने HCl, तो वेरी वेल वी नो दैट H कैरीज अ प्लस चार्ज एंड Cl कैरीज अ माइनस चार्ज. सिमिलरली अगर हमारे पास HBr है तो H कैरीज अ प्लस चार्ज एंड Br कैरीज अ माइनस चार्ज. और अगर हमारे पास HI है, H कैरीज अ प्लस एंड I कैरीज अ माइनस. तो अगर हमारे रिएजेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिस रिएजेंट को नेगेटिव चार्ज है, विल गो टू विच कार्बन एटम? नेगेटिव चार्ज विल गो टू द कार्बन एटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. देखो हमारा क्या बोलता है, अगर हम लोग रिएजेंट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडिशन कहाँ पे होगा? अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. मतलब हमें जो भी ऐड करना है वो लेफ्ट कार्बन या राइट कार्बन पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा. तो वॉट एवर वी आर एडिंग हैज टू गेट एडेड अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. लेकिन कौन कहाँ पे जाएगा? तो जिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कौन से कार्बन के पास जाएगा? जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है वहां पे कौन चला जाएगा? Br चला जाएगा. करेक्ट. और H विल गो टू दिस. H विल गो टू दिस. करेक्ट. तो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? आई विल रिपीट अगेन. When unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to carbon atom carries less number of hydrogen. Correct. Less number of hydrogen. तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट हमारा Br माइनस था, इस कार्बन पे चला हुआ, तो प्रोडक्ट विल गेट हियर CH3, CH will get Br and addition double bond के across, so double bond will change to single bond and then we'll have CH3. And we know the name of this compound. It is called as secondary प्रोपाइल ब्रोमाइड. मतलब नाम मालूम है, एक बार लिख रहा हूँ. which is also called as isopropyl bromide or is also called as 2-bromo propane. 2-bromo propane. Correct. 2-bromo propane. तो ये कंपाउंड हमें मिला और ये हमारा क्या कौन सा कंपाउंड रहेगा? मेजर. इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर. ये होगा. मतलब अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्किन में अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा. मेन प्रोडक्ट रहेगा. करेक्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट. ओके. नाउ सिमिलरली आई टेक, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल हो गया. अगर मुझे मार्कोनिकॉफ रूल का और एक एग्जांपल अगर लेना है तो CH3, CCH3 डबल बॉन्ड CH2 एक कंपाउंड है. करेक्ट. अगर इस कंपाउंड में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो इन दिस स्ट्रक्चर ये अनसिमेट्रिकल है. क्यों अनसिमेट्रिकल है? राइट साइड में CH2 है, लेफ्ट साइड में CC, अलग अलग ग्रुप है. तो ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल है और इसका मैं नाम अगर लिखूंगा तो आएगा 2-मिथाइल प्रोपीन. क्या आएगा नाम? 2-मिथाइल प्रोपीन. 2-मिथाइल क्योंकि यहाँ पे देखो ये नंबर 1 है, डबल बॉन्ड यहाँ पे तो नंबर 1, 2 एंड 3. 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो इसलिए 2-मिथाइल. 3 कार्बन आइटम इन द चेन है तो इसलिए प्रोप. और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसलिए EN, प्रोपीन. अगर इसके अंदर अगर मैंने HBr ऐड कर दिया, HBr अगर ऐड कर दिया तो देखो क्या होगा. सबसे पहले अनसिमेट्रिकल अल्किन है. ये जो अल्किन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अनसिमेट्रिकल. HBr हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. HBr हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. तो क्या होगा? H के ऊपर चार्ज रहेगा प्लस, Br के ऊपर चार्ज रहेगा माइनस. तो Br विल गो टू द कार्बन आइटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और डबल बॉन्ड के राइट साइड कार्बन के ऊपर 2 है. तो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen. तो यहाँ पे चला जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा CH3, CH3, Br यहाँ पे चला जाएगा
डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड, और H यहाँ पे H चला जाएगा तो क्या बनेगा फिर CH। एंड वी नो इट्स कॉमन नेम, इट इज टर्शरी, टर्शरी मतलब T, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका IUPAC में नोमेनक्लेचर में दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, करेक्ट। तो ये हुआ अनसिमेट्रिकल के साथ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अदर वे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या रूल था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन आइटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो एडिशन इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। अभी सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे, सेम एग्जांपल, but that heading I'm just calling here as a peroxide effect. Peroxide, अब peroxide effect क्या है देखो, मतलब again I'll take here example CH3 CH double bond CH2, प्रोपीन ही है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, करेक्ट। और अगर मैंने यहाँ पे HBr अगर ऐड कर दिया, बट अभी मैं क्या करूँ देखो, यहाँ पे भी सेम था प्रोपीन HBr, बट एरो के ऊपर कुछ नहीं था। यहाँ पे प्रोपीन और HBr, लेकिन एरो के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे लिखा बेंजोइल पेरोक्साइड, एरो पे को मैंने क्या लिखा, बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब ये जो रिएक्शन मेरा है ये किसके साथ हो रहा है, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ हो रहा है। रिएक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अगर हमने एरो के ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड अगर लिखा या रहेगा तो क्या होगा, सी अगर ये नहीं होता, यहाँ पे अगर पेरोक्साइड नहीं होता, Br कहाँ पे जाता, Br would have gone to the carbon atom carrying less number of hydrogen, तो Br यहाँ पे जाता CH के पास, और H चला जाता CH2 के पास। लेकिन एरो के ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा, मतलब रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इसके कारण क्या होगा, Br विल गो टू द CH2, उल्टा हुआ, Br CH2 के पास जा रहा है और H विल गो टू CH। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 Br। देखो एरो के ऊपर पेरोक्साइड, मतलब रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होने के कारण Br is going to CH2 and H is going to CH. So what are you getting here? CH3, CH2, CH2 Br, which is called as N propyl bromide, which is called as 1 bromopropane, which is called as a 1 bromopropane। मतलब बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड हमारा रिएक्शन रिवर्स हुआ, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड हमारा एडिशन मार्कोनिकॉफ के अपोजिट, मार्कोनिकॉफ का एडिशन क्या था कि Br should go to the carbon atom carrying less number of hydrogen, but because we are using here peroxide, the addition is happening opposite to Markovnikov, and therefore it is called as what, anti Markovnikov's rule। ये हमें प्रोडक्ट मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन, करेक्ट। तो ये चेंज, और पेरोक्साइड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या बोलना है, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलना है। क्या बोलना है, पेरोक्साइड इफेक्ट। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि दैट पेरोक्साइड इफेक्ट is applicable only for HBr। ये जो हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट है वो खाली किसके लिए एप्लीकेबल होगा, HBr के लिए ही एप्लीकेबल होगा। HBr के लिए मतलब देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल वापस रिपीट करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और अगर मैंने यहाँ पे HI ऐड कर दिया, HI, और एरो के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा बेंजोइल
पेरोक्साइड लिखा, देखो अभी मुझे मालूम है H में होता है प्लस एंड I होता है माइनस। अगर मैंने यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं लिखा होता, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं, तो I कहाँ पे जाता? I would have gone to carbon atom carrying less number of hydrogen and H would have gone to CH2, मतलब एडिशन विल ऑकर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर मैंने अभी एरो के ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा, मतलब I will go to CH2 एंड H will go to CH, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड का कुछ भी काम नहीं होता, मतलब अगर मैंने एरो के ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा होगा तो भी एडिशन विल ऑकर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, मतलब I कहाँ पे जाएगा? CH के पास ही जाएगा और H कहाँ पे जाएगा? CH2 के पास होगा, मतलब एडिशन विल ऑकर अकॉर्डिंग टू विच रूल? मार्कोनिकॉफ, करेक्ट। मतलब यहाँ पे मैंने एरो, यहाँ पे अगर मैंने अल्किन लिया, HBr लिखा और पेरोक्साइड किया तो अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे HI लिखा, HCl लिखा, बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा, लेकिन एडिशन मार्कोनिकॉफ की तरह ही होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr। मैं रिपीट करता हूँ वापस कि सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब आयोडीन शुड गो टू कार्बन आइटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। तो यहाँ पे आयोडीन चला जाएगा और यहाँ पे H चला जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था? CH3 CHI CH3, ये ऐसा आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने एरो के ऊपर या मतलब रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ अगर परफॉर्म कर दिया तो अभी रिएक्शन अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन अपोजिट नहीं होगा क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है वो खाली किसके लिए एप्लीकेबल है? HBr के लिए। तो वेदर वी हैव द बेंजोइल पेरोक्साइड, वेदर वी डू नॉट हैव द बेंजोइल पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ द HI विल सेम अकॉर्डिंग टू विच रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल। और ये मिला। एंड दिस लास्ट रिएक्शन अगर हमने यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा और अगर मैंने यहाँ पे HCl लिखा और एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है, अगर एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है तो Cl कहाँ पे जाएगा? CH के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 CH Cl CH3। और लेकिन अगर मैंने एरो के ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड भी अगर लिखा, यहाँ पे एरो के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड भी अगर लिखा तो भी मेरा प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। मतलब ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसका इफेक्ट खाली किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर HBr, मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट is applicable only for addition of the HBr. It is not applicable for addition of HI. It is not applicable for addition of HCl. यहाँ पे जो addition होगा, the addition will according to which rule? According to Markovnikov rule. What is Markovnikov rule? The plus and minus, the negative part of the reagent goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen. तो ये हमारा प्रोडक्ट मिला, राइट। तो ये हमारा नोट है, is all coming under the note। मतलब peroxide effect is applicable only for HBr. It is not applicable for HI and HC। और ये उसके एग्जाम्पल्स, करेक्ट। तो with this we will stop it over here and the remaining topic we'll do it in the next lecture, okay? Thank you.